According to the new syllabus, we have done these topics in chapter 2, fungi. From chapter 2, this syllabus is coming from fungi, its major groups, lichens, virus, varioids. This has been revised. Today we are going to revise chapter 3. This we are going to revise today. That is algae, bryophytes, stridophytes, gymnosperm. Okay. This is we are going to revise. Okay, ma'am. Ma'am, you are not audible. तो ये मैं सिलेबस आपको शेयर कर रही हूँ सीबीएसई का टर्म 1 टर्म 2, और उसमें मैं ये बता रही थी कि आपके ये जो चैप्टर्स हैं सेकंड, ये हमने पूरा रिवाइज कर लिया है, कल ही कर लिया था। आज उसके हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एंड चैप्टर 3 में we will be discussing these topics and we will be leaving angiosperms as it is not given in the syllabus. Chapter 4 will be explained, revised. Chapter 5 will come in UT1, and in that the families are there, flower is there, inflorescence is there, and in family basically the main MCQ will come according to your फ्लोरल फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था, एक वीडियो देखी थी हमने फ्लोरल फॉर्मूला के बेसिस की। So according to that MCQ will come. So this is your syllabus. These things you have to be sure of that you have to be covering these things. ठीक है, सिर्फ एक रह जाएगा। देन चैप्टर 7 अकॉर्डिंग टू योर टर्म 1 सिलेबस, चैप्टर 7 एक टर्म 1 में, यूनिट 2 में एक रह जाएगा, और टर्म 1 का फिर यूनिट 3 भी है जिसके चैप्टर 8
So have you understood? I was describing the syllabus. Clear है आपको कौन कौन सा पार्ट आ रहा है? Is it clear to you? मैंने आपको सिलेबस शेयर किया था. सिलेबस में जो हमको कवर करना है वो पार्ट्स बताए थे. तो आपको ये सब क्लियर है कि नहीं है? Yes, ma'am. Clear. टर्म वन में क्या क्या चैप्टर्स हैं? में हमारी यूनिट 1 तो कंप्लीट हो गई है. यूनिट 2 जो है वो हमारी उसका एक चैप्टर रह गया है 7. उसमें एनिमल टिश्यू का ही एक ही टॉपिक है, सिंगल टॉपिक, तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे. एंड टर्म 2 जो है, टर्म 2 में फिर हमारा एक टर्म 2 में जो यूनिट 3 है वो 2 बार डिवाइडेड है. मतलब वो टर्म 1 में भी है 8 और 9 चैप्टर उसका, और 10th चैप्टर उसका टर्म 2 में जाएगा. तो अभी हमारा एम रहेगा आज हमारी क्लास में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं of which you have made. Rishika has shared me the MCQ question. Aradhya and Tanya also has shared me. So let us discuss those questions. So these are the questions. I will be sharing the screen with you and we will start to discuss these questions. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. So number 1 question is varioids have. What varioids have? What do varioids have? Single-stranded RNA not enclosed by protein coat, single-stranded DNA not enclosed by protein coat, double-stranded DNA enclosed by protein coat, or double-stranded RNA enclosed by protein. What varioids have? Tell me, what does this varioid has? Which option? बताओ कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? आउट ऑफ ABCD which option will be correct? Do you know? वायरोइड्स के अंदर क्या होता है? Which type of genetic material is there? Or whether protein code is present or not? RNA. And that too. Ma'am, option A. Option A will be there. RNA will enclose in protein code. Okay. Now next, select the wrong statement. Mosaic disease in tobacco and AIDS in human beings are caused by viruses. Select the wrong statement. Ma'am, you are muted. Second question, which one is wrong statement? A, the mosaic disease in tobacco and the mosaic disease in tobacco and W.M. Stanley that the viruses could be crystallized. And third, the varioids were discovered by D.J. Narsky and the term contagion vivium fluidum was coined by N.W. Vigenin. Wrong. Ma'am, C option. Which one is wrong? Ma'am, C option. Yes, it is correct. C option. C option is the correct option. Now we will move to third question. Potato spindle tuber disease is caused by viruses, varioids, prion, fungus. किनसे होती हैं? Potato spindle.
टेल मी फ्रॉम विच? पोटैटो स्पिंडल डिजीज ये किससे होती है? इनमें से किससे होती है? वायरस से, वायरोइड से, प्रियॉन से होती है, फंगस से होती है, किससे होती है? टेल मी। पीएसटीडी किससे होती है? किसकी डिजीज है ये? पोटैटो स्पिंडल डिजीज किसकी डिजीज है? कॉशल ऑर्गेनिज्म कौन है? कौन कॉज करता है इसको? वायरस कॉज करते हैं, विरियोइड्स कॉज करते हैं, या फंगस कॉज करती है? कौन कॉज करता है? मैम वायरॉइड्स। वायरोइड्स इज द करेक्ट ऑप्शन, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, infectious protein are present in. infectious protein किस में प्रेजेंट होते हैं? जेमिनी वायरस, प्रियॉन्स, वायरोइड, सैटेलाइट वायरस, किसमें प्रेजेंट होता है infectious protein? मैम प्रायंस। प्रियॉन्स में. प्रियॉन्स is the correct option, B. And fifth, prions are viruses that have only core of nucleic acid, lipoprotein coat, protein coat and no nucleic acid, few genes. बताओ prions को कैसे डिफाइन करोगे? फिफ्थ क्वेश्चन, how will you define prions? कैसे डिफाइन करोगे prions? प्रोटीन कोट एंड नॉन न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डिफेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं वही प्रियॉन्स हैं. मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आर, एंड उसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? प्रोटीन कोट. ठीक है. हु क्रिस्टलाइज्ड इन आइसोलेटेड वायरसेस फ्रॉम द फर्स्ट टाइम? किसने क्रिस्टलाइज किया था और वायरस को आइसोलेट किया था सबसे पहले? हु वाज दैट वन? मैम WM स्टैनले। WM Stanley is the correct answer. WM Stanley was the scientist who crystallized for the first time. And which virus was crystallized? Tobacco mosaic virus, TMV, was crystallized. Potato leaf roll and papaya leaf curl are due to, किसकी वजह से होता है potato leaf roll and papaya leaf curl? माइकोप्लाज्मा, वायरस, बैक्टीरिया, वायरोइड्स, किसकी वजह से होते हैं ये? बताओ, टेल मी. किसकी वजह से होते हैं ये वाली बीमारियां? पोटैटो लीफ रोल, पपाया लीफ कर्ल एंड किसकी वजह से होते हैं? माइकोप्लाज्मा, वायरसेस, वायरोइड, किसकी वजह? वायरस। वायरस के वजह से होते हैं. ठीक है. These are the symptoms which are caused by the viruses. Next, select the pair of that consists of viral diseases. ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है जिनके अंदर वायरल डिजीजेस का नाम दिया हुआ है. मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा नहीं मैम, बोथ A and B. बोथ ए एंड मम्स एंड स्मॉल हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा, ये दोनों आपके वायरस वाले डिजीजेस. स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, सबसे छोटा फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? वायरोइड, वायरस, माइकोप्लाज्मा, वायरस. वायरस नो. फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला है, ये बात यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है. आपको पता है वायरस कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है?
वायरोइड भी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये सब इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं। ये नॉन लिविंग मतलब बाहर कैसे रहते हैं, ये नॉन लिविंग की तरह रहते हैं, ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होते वायरस, ना वायरोइड ऑर्गेनिज्म होता ना प्रियॉन ऑर्गेनिज्म होता। ऑर्गेनिज्म कौन है, माइकोप्लाज्मा, ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा ही है। तो माइकोप्लाज्मा क्या होगा, माइकोप्लाज्मा विल बी योर व्हाट, माइकोप्लाज्मा विल बी योर स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप तो देख ही नहीं पाओगे इसको, थोड़ा सा ऐसे बैठो ताकि आपको भी स्क्रीन विजिबल हो। Which of the following parasite is non-living outside the host? ठीक है, कौन सा हम 10th क्वेश्चन कर रहे हैं, which of the following parasite is non-living outside the host but becomes living on entering in it? मतलब कोई कौन सा ऐसा इनमें से है, 4 ऑप्शंस में से तो बाहर वायरस नॉन लिविंग रहता है, वो एंटर करता है होस्ट के सेल्स में, वो लिविंग हो जाता है। तो इज इट वायरस, इज इट पीटीएलओ, बैक्टीरिया या नन ऑफ दीज? वायरस। तो ये वायरसेस की क्वालिटी होती है, वायरसेस का प्रॉपर्टी है कि वो और नॉन लिविंग की कनेक्टिंग लिंक है, वो बाहर नॉन लिविंग है और अंदर लिविंग है। 9th क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा। मैंने क्या बताया, क्योंकि वायरस वायरोइड्स नॉन लिविंग होते हैं बाहर, वो ऑर्गेनिज्म नहीं है। Select the pair that consist of viral diseases, तो both A and B, क्योंकि मम्स भी वायरस से होने वाली बीमारी है, स्मॉल पॉक्स भी, हर्पीस भी, इन्फ्लुएंजा भी। मैम यू आर म्यूटेड। तो 6th में हमने रिवाइज कर लिया, रिवाइज हु क्रिस्टलाइज एंड आइसोलेटेड वायरसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, WM स्टेनले। 5th क्वेश्चन, प्रियॉन्स आर द वायरसेस दैट हैव ओनली प्रोटीन्स। ठीक है, उनके पास सिर्फ प्रोटीन होगा, कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, ना आरएनए होगा ना डीएनए होगा, सिर्फ इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं प्रियॉन्स। नाम से ही प्रोटीन से ही प्रियॉन्स बना है, क्या होना है, प्रोटीन होगा, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होंगे। 4th, इन्फेक्शियस प्रोटीन आर प्रेजेंट इन, इन्फेक्शियस प्रोटीन किसमें प्रेजेंट है इनमें से, अभी अभी बताया। इन्फेक्शियस प्रोटीन कौन होता है, प्रियॉन। तो सेकंड ऑप्शन, 4th का क्या होगा, सेकंड ऑप्शन प्रियॉन्स। प्रियॉन्स बोलो या प्रियॉन्स बोलो, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन गूगल पे देख लेना। हमारे टीचर प्रियॉन बोलते थे तो हमें भी वही आदत हो गई, तो हम जैसा सुनते हैं उसकी आदत हो जाती है, पर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे आ जाता है, स्पेलिंग लिखो, प्रोनाउंस करने को बोलो तो गूगल दे देता है। ये 3rd क्वेश्चन है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय, किससे होती है ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, प्रियॉन से होती है कि वायरोइड से होती है, वायरोइड्स। वायरोइड से, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, इनमें चारों स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी और रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी पड़ेगी। मोज़ैक डिजीज, टोबैको और एड्स, ये वायरस वाली डिजीजेज हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मोज़ैको डिजीज मतलब टोबैको की मोज़ैक डिजीज और ह्यूमन की एड डिजीज वायरस से होती है। बी बोल रहा है कि WM स्टेनले ने वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया। सी बोल रहा है कि वायरॉइड्स को सबसे पहले DJ इन्वांस्की ने डिस्कवर किया। और डी बोल रहा है कंटेजियम विबियम फ्लूइड MW पिचर ने दिया था। तो ये करेक्ट है बट सी इनकरेक्ट है।
ये क्या है? इनकरेक्ट। तो C will be the your answer. Viroids have single-stranded RNA not enclosed by protein coat. Single-stranded DNA not enclosed by protein coat या double-stranded DNA enclosed by protein coat. Viroids में क्या होता है? ये क्वेश्चन है. Viroids have. Viroids किसके बने होते हैं? Double-stranded RNA के enclosed by protein coat क्या होता है? ये कल का टास्क था कि आपको वायरोइड्स पढ़ना था, पियोन्स, वायरसेस, ये सब पढ़ने थे और बनाने थे. ये कल का होमवर्क था. तो इसका क्या आंसर है करेक्ट? ए. सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है और उसके कोई प्रोटीन कोट नहीं होता वायरोइड्स का. ये लिखा. They are infectious agents smaller than the viruses caused potato spindle disease. It was found that it is a free RNA lacking protein कोट. इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता. ठीक है. हम एमसीक्यू को इसीलिए कर रहे हैं इतना फोकस बिकॉज फर्स्ट टर्म के पेपर में एमसीक्यू पेपर आने वाला है. ठीक है. हमको थ्योरी तो समझनी है ही चैप्टर की, वो तो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है. चैप्टर समझना तो आपका प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, बट चैप्टर समझने के बाद एमसीक्यू को अपने दिमाग में बिठाना कि इस तरह का एमसीक्यू होगा, किस तरह से उसके करेक्ट ऑप्शन पे जाया जाएगा और मिस्टेक्स को कम किया जाएगा. ठीक है. मिस्टेक के चांसेस यहाँ भी होते हैं, गलत ऑप्शन चुनने के चांसेस यहाँ भी होते हैं, भले ही हमें चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो, बट एमसीक्यू की भी अपने लिए अंडरस्टैंडिंग बनाना, एमसीक्यू के पैटर्न से यूज टू होना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो इसको हम लोग इसीलिए बार बार क्लासेस में इसको 40-40 मिनट 60-60 मिनट इसी को समझा रहे हैं कि एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करने हैं. तो सिंपली मतलब ये है कि ये एक आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा अगर आप इसको लर्न करोगे तब. ठीक है. लर्निंग ऐसे नहीं होती कि हम, लर्निंग अलग चीज है. लर्निंग ये है कि आपने अपने अंदर क्या चेंज लाए, वो लर्निंग एक्चुअली में. आप क्लास अटेंड करी, एमसीक्यू अटेम्प्ट करे, एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के बाद आपके अंदर जो पहले की नॉलेज थी उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुई, सीखा क्या आपने. ठीक है. तो इसीलिए मैं किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, मैं किस तरीके से उसके आंसर्स ढूंढ रही हूँ, मेरी क्या उसके पीछे स्ट्रेटेजी चल रही है, वो तुम्हारे माइंड में अपने आप समझ में आनी चाहिए. वो तुम्हारी लर्निंग होगी, ताकि जब तुम अटेम्प्ट करो तो तुमको भी वही चीज फॉलो करके फायदा हो उससे. जाओ एमसीक्यू करने आ जाए तुमको भी अच्छे से. वो है, ये आपको सीखना है क्लास में. एमसीक्यू सॉल्व करवाने का यही एकमात्र रीजन है और कोई रीजन नहीं है. क्लास में एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप इससे लर्निंग ले रहे हो तो ये आपके लिए बेटर है. नहीं ले रहे हो तो आपके लिए नुकसान है. ठीक है. तो कोशिश ये करो कि आप इसके लिए थोड़ा सा और क्यूरियस रहो. ठीक है. इसमें लेजीनेस मत दिखाओ. नई चीज है, ये नई चीज है तो इसको और ध्यान देने वाली चीज जगह वो है, इसके लिए जरूरत है. ठीक है. अब ये ऋषिका के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है हमें, शायद फर्स्ट क्वेश्चन दूसरे पेज पे हो. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरसेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट. किसने क्वेश्चन सही से समझ लिया उसका आंसर कभी गलत होगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है. अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग पता है तो आपको डेफिनेटली आप आंसर ढूंढ लोगे. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट. तो मीनिंग क्या है, इनमें से, दिए हुए में से कौन से इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर की बात हो रही है, इनसाइड द सेल ऑब्लिगेट पैरासाइट, और मतलब ऑप्शन लेस, मतलब वो बिना पैरासाइट के रह ही नहीं सकते, मतलब वो कंफर्म पैरासाइट है. ऐसे कौन सा ऑर्गेनिज्म नीचे दिए हुए हैं जिनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है, तो बिना पैरासाइट के जिंदा ही नहीं रह सकता. तो क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, वायरस. क्योंकि बैक्टीरिया अपने आप हमें मिल जाते हैं, डिकम्पोजर्स के फॉर्म में मिल जाते हैं बैक्टीरिया. ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं कुछ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो वो पैरासाइट नहीं होते. पर एक ही वायरस ऐसा होता है जो कि पैरासाइट होता है, वो बिना पैरासाइट की अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकता.
दूसरे पे डिपेंड हुए बिना अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायरसेस वाज प्लेस्ड इन, वायरसेस कौन से ग्रुप में रखे गए थे 5 किंगडम्स में से? किसी भी किंगडम में नहीं रखे गए वायरस, वायरस की कोई किंगडम नहीं, ठीक है, तो इट इज नॉट, नन ऑफ दीज आंसर हो जाए। देन नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द वायरस एंड वायरोइड्स। तो वायरसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरोइड इज, वायरस और वायरोइड में क्या डिफरेंस है? प्रोटीन कोट एब्सेंट इन वायरोइड बट प्रेजेंट इन वायरस, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए प्रेजेंट इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरोइड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। अब ये दोनों जो लाइनें हैं ए और बी बहुत ही करीबी हैं दोनों, मतलब एक जैसी लग रही हैं, ठीक है, ऊपर वाली लाइन की जस्ट नीचे वाली लाइन अपोजिट ही है, दोनों ऑप्शन क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, पर इन दोनों में से एक ही करेक्ट है, बोथ ए एंड बी नहीं है करेक्ट। पर अगर किसी को थोड़ी भी कंफ्यूजन होगी वायरस की और वायरोइड के बारे में तो वो ए और बी भी लगा सकता है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऐसे भी लगा सकता है। उसके लिए क्या चाहिए, थ्योरी पे पकड़ चाहिए, मतलब आपका ये मैटर याद होना चाहिए कि वायरस की डेफिनेशन क्या है, कि इट इज having two things, two main things, this red color twisted thing is RNA और उसके ऊपर जो होता है वो प्रोटीन कोड। वायरस में दोनों होने जरूरी है, और वायरोइड का क्या है, उसमें प्रोटीन कोड नहीं होता, उसमें सिर्फ क्या होता है, आरएनए होता है, सिर्फ आरएनए होता है। तो अब इसमें से कौन सा क्या डिफरेंसेस, क्या डिफरेंस लिखेंगे हम, करेक्ट डिफरेंस हुआ, करेक्ट डिफरेंस हुआ, तो कौन सा है करेक्ट डिफरेंस, प्रोटीन कोट एब्सेंट इन वायरोइड बट प्रेजेंट इन वायरस। जेनेटिक मटेरियल तो दोनों में ही है, बट क्या चीज एब्सेंट है, प्रोटीन कोट एब्सेंट है, किसमें एब्सेंट है, वायरोइड में एब्सेंट, ठीक है। तो ऐसे करेक्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा आपको, अंडरस्टैंडिंग को यूज करके, अप्लाई करके। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव डैश, जिस वायरस, जो ज्यादातर प्लांट के वायरस हैं वो कौन से फॉर्म के वायरस होते हैं? तो ऐसा देखा गया है कि देयर इज अ सिलेक्शन कह लो या इवोल्यूशन कह लो, जो भी कह लो, कि ज्यादातर प्लांट के जो वायरस हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस मिलेंगे आपसे, और एनिमल्स में डीएनए वायरस सिंगल, उनमें सिंगल वाले ज्यादा होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। देन ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बेसिस के भी क्वेश्चन है, मैचिंग के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड जो मैंने बोला था सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व करो, ट्राई टू इन्वॉल्व ऑल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इन योर एमसीक्यू व्हिच यू विल बी मेकिंग। अगर आप सारे तरह के एमसीक्यूज को इन्वॉल्व करोगे तो आपकी ही रिवीजन अच्छी होगी, आप उससे ज्यादा समझ पाओगे। पेपर में भी ऐसे ही आएंगे, पेपर में सिर्फ 4 मार्क वाले नहीं आएंगे, सॉरी 4 ऑप्शंस वाले नहीं आएंगे, it will be having fill-ups as well as it will be having one word, it will be having variety of question, variety मिलेगी। फर्स्ट क्या है, बैक्टीरिया ईटर्स और बैक्टीरिया फीडिंग वायरस आर कॉल्ड डैश। तो बैक्टीरिया पे जो अपनी लाइफ साइकिल, ये जो बैक्टीरिया पे अटैच करके अपने टेल फाइबर्स को अपना डीएनए यहाँ से इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन की तरह, और अपने आप को ग्रो करते रहते हैं, उन वाले वायरसेस को क्या कहते हैं, देखो यहाँ नाम लिखा है बैक्टीरियोफेज, क्या बोलते हैं, और नाम से भी पता चल रहा है बैक्टीरिया को फेज करने वाले, फेज मतलब क्या होता है, ईटिंग, फीडिंग या ईटिंग, ठीक है। द वर्ड वायरस मीन्स, वायरस का मीनिंग किससे आया था, वायरस नाम किससे दिया था, वेनम और पॉइजन, पॉइजनस या वेनम, ठीक है। वन वर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ वायरस एनवेलप, वायरस एनवेलप को क्या बोलते हैं, कोट को क्या बोलते हैं, प्रोटीन कैप्सिड बोलते हैं, तो कैप्सिड बोलते हैं, बना किसका होता है, प्रोटीन का बना होता है, पर नाम क्या है उसका, कैप्सिड। व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज इट रिटन, फंगल एंड एल्गल पार्टनर, लाइकन में फंगल और एल्गल पार्टनर के नाम क्या क्या है, फंगस को क्या बोला जाता है और एल्गे के कंपोनेंट को क्या बोला जाता है, तो फंगस को माइकोबायोन, बायो वर्ड तो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होता ही है,
लाइफ की स्टडी बायोलॉजी है। बायो वर्ड कहीं पे भी दिखे इसका मतलब ऑर्गेनिज्म। माइको वाला मतलब माइको वर्ड कहीं पे भी दिखे मतलब फंगस। तो फंगस वाला पार्ट माइको बायोन, फंगस का ऑर्गेनिज्म का पार्ट, और प्लांट के ऑर्गेनिज्म का पार्ट फाइकोबायोन। सिंपल है, रिमेंबर करना सिंपल है। अगर आप इसको ब्रेक करके मेजॉरिटी ऐसे कह नहीं सकते कि किसकी ज्यादा है, कि बिकॉज सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, पर फिर भी क्योंकि फ्रेमवर्क कौन दे रहा है, फंगस दे रहा है, क्योंकि जाल जैसा नेटवर्क कौन बना रहा है, फंगस बना रहा है। तो माइक्रोबायोम की ही अमाउंट में ज्यादा होगी, क्योंकि उसको शेल्टर देना है, उसको प्लेस देनी है रहने की। और फाइकोबायोन्ट अपना बस फूड देगा, तो वो बीच में ग्रीन कलर का मास्क की तरह रहेगा। What is the study of lichens called? Lichenology. Lichen की स्टडी को क्या कहेंगे? Lichenology. Lichens are the major pollution indicator of what? Particularly कौन से गैस को या कौन से सब्सटेंस के पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड। जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं, चाहे पेट्रोल बर्न हो रहा है चाहे कोल बर्न हो रहा है, सब में दो ही तरह की मेजर गैसेस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इन्हीं से एसिड रेन होती है, ठीक है। यही जब रेन वाटर में मिक्स होते हैं तो एसिड रेन होती है। तो पॉल्यूशन वाले एरिया में SO2 की गैस की पॉल्यूशन को ये शो करता है, इंडिकेट करता है। जहाँ पॉल्यूशन होगी वहाँ ये ग्रो नहीं, वहाँ से खत्म हो जाते हैं पूरे। इसका मतलब वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की पोल्यूशन है, वहाँ फैक्ट्रीज ज्यादा है, वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स का पोल्यूशन ज्यादा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। देन हु प्रपोज्ड कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम? किसने दिया था ये कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम? हु हैज गिवन दीज? MW विजयरेंग। तो इसको टिक कर देंगे। वर्को ने क्या दी थी? सेल थ्योरी का सेकंड जो लाइन है कि जो न्यू सेल्स कम फ्रॉम ओल्ड सेल, वो वर्को ने दिया था। डीजेनोवास्की ने क्या दिया था? टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बताया था कि इट इज अ वी कैन से वेनमस। अच्छा, तो इवानोवास्की ने भी तो फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड, डिमिट्री इवानोवास्की रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन मतलब सबसे पहला TMV रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। और इसका नेक्स्ट वाले का लास्ट वाला का किससे रिलेटेड है? रॉक्सबर्ग। रॉक्सबर्ग इज रिलेटेड टू व्हाट? आई डोंट नो। इनके बारे में तो हमने अभी पढ़ा है बायोलॉजी में, ये भी हो सकता है। मुस्कान, डू यू रिमेम्बर फ्रॉम वेयर हैव यू कनेक्टेड दिस रॉक्सबर्ग? मैम नो। ओके, तो बीट लेट इट बी, बिकॉज ये सिर्फ एक ऑप्शन ही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चंस? इसी में है कि अगले पेज पे है? मैम नेक्स्ट पेज पे है, वो लास्ट पेज है बस, जिसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन स्टार्ट है। अच्छा, ये बैक भी नहीं होता, ये ऐसे हो जाता है। दोबारा से रीजॉइन कर लेना इसी लिंक पे, ठीक है मुस्कान। ये क्लास अभी ओवर होने वाली है, तो यू हैव टू ask, you also have to rejoin the class with the same link, ठीक है। मैम The link which is given in your class, you have to rejoin that.